Okay, so let us continue our last discussion. Okay, and one more topic is there that will complete in today's tutorial session, and that is all about your second unit. Okay, so on that last topic, we'll ask only easy question as it is application where you need a strong knowledge from physics, but we focus more on the application of this matrix or application of these eigenvalues and eigenvectors in the mass spring system. Okay, so that topic will take in today's tutorial session. So in last lecture we already introduced the next application, which is called as diagonalization using eigenvalues and eigenvectors. That this you can say the application of the eigenvalues and eigenvectors. So can anyone tell me this definition again? What is the meaning of diagonalization? What do you understand from this topic? So let A be any square matrix. Let A be any square matrix. So what is meant by diagonalization? Can anyone tell me? What is meant by diagonalization? Sir, diagonalization means Yes. making all elements except diagonal 0. Yes, or it simply means you have to convert this matrix A into, diagonalization is a process which convert given matrix A into diagonal matrix. Okay, where what is relation between A and D? Sir, where D is equal to No. D. Okay, I know that The diagonal element is I don't want the value of this D. What is the relation between this A matrix and its corresponding diagonal matrix? They are similar. Sir, they are What is the similar. meaning of this diagonal notation? elements Huh? are They are eigenvalues. similar. Equivalent, ma'am. Sir, equivalent. Not equivalent, they are similar. Similar. ठीक है, equivalent means what is the meaning of equivalent? अब ये सेम नोटेशन आपको दिखाई दे रहा है, इक्विवेलेंट के लिए भी हमने यही यूज़ किया था, तो सिमिलर के लिए भी शायद यही है. ओके, आई हैव टू चेंज इट इनिशियली. एक मिनट एक चेक करता हूँ कि उन्होंने, ठीक है. In this case you have to take this as similar. Okay, but can anyone tell me what is meant by equivalent? Sir, same number of rows and all the elements are same. No, equivalent की actual definition क्या थी? That is okay. Okay. Transformation all. They are equivalent. हाँ. If you perform any elementary transformation on this matrix, the resultant matrix is called as equivalent matrix. Okay, याद रखो ये definition. If you perform any elementary transformation on this matrix or on a given matrix, okay, the resultant matrix is called as equivalent matrix. Okay, so that is the definition of equivalent matrix. And similar matrix means what? Similar matrix means what? So A and D are similar, where A and D are similar means what? Where A and D are similar, that is, there exist non-singular matrix. There exist non-singular matrix P. Okay, non-singular है तो क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? नॉन जीरो होगा. Okay, such that D is equal to P inverse AP. So if we able to find a non-singular matrix P, okay, such that this D is equal to P inverse multiplied by A multiplied by P, then we call this D and A are similar. ठीक है? So here in the process of diagonalization, okay, what is our D matrix? Can you tell me what is our D matrix in general? यहाँ पे आपका D matrix क्या आता है? सर लैम्बडा की वैल्यूज रहती है. Lambda. Yes, it is a matrix. It is a diagonal matrix in which eigenvalues are on diagonal. So lambda 1, lambda 2 up to so on. Let me take lambda n, and these remaining entries are 0. Okay, कैसे लिखा भी है, इससे समझ में आएगा ना? Yes, These sir. remaining entries are 0. Okay, so this is the diagonal matrix.
Okay, and so this matrix is also called as spectral matrix. Spectrum means eigenvalues. Okay, spectrum means eigenvalues. Spectral matrix. Okay, and what is P matrix? What is P matrix here? Matrix of eigenvectors. It's a matrix of eigenvectors, where the first column vector is the eigenvector corresponding to lambda 1. So can I write like this: x1, x2, xn. Next is y1, y2, yn, and so on. Last में कहीं पे z1, z2, zn. Okay, where this is what this is. Sorry, this is eigenvector. Okay, corresponding to lambda 1. Okay, similarly this is eigenvector corresponding to lambda 2, and so on. This is eigenvector corresponding to lambda n, like that. This is the theory, and this matrix is called as modal matrix. DEA मॉडल, करेक्ट. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था. ओके, दिस इज ऑल अबाउट डायगोनलाइजेशन. ओके, क्या क्या याद रखना है कि डायगोनलाइजेशन में होता क्या है? In diagonalization we just convert a given matrix into a diagonal matrix where both matrices are similar. What is meant by similar? Similar means there exists a non-singular matrix P such that D is equal to P inverse AP. Okay, where this D matrix is called as spectral matrix, P matrix is called as modal matrix. Okay, now let me take few examples on this now. So ये मीनिंग वही है, फाइंड अ मॉडल मैट्रिक्स विच डायगोनलाइज दिस और डायगोनलाइज दिस एंड फाइंड मॉडल मैट्रिक्स. तो एट द एंड यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में ये चेक करने के लिए नहीं बोला है कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. ओके, ऑलरेडी वो डायगोनलाइजेबल है. ठीक है, आपको बस उस केस में पी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है एंड डी मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो इसको मैं अभी क्वेश्चन को चेंज करता हूं मैं. ओके, थोड़ा अलग वे से देता हूँ विच कवर एमसीक्यू आल्सो. हेलो सर, बोलो ना. डायगोनलाइजेबल है कि नहीं ये ऐसा क्वेश्चन आने वाला. सो आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स ऑन दैट पार्ट आल्सो टुडे. ओके, हाउ यू क्विकली चेक इन एमसीक्यूज वेदर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. सो दैट आल्सो आई विल टेक टुडे. ओके, सो लेट मी टेक सम एग्जांपल्स. Question 1. Check whether matrix A, which is equal to let me take any random matrix, 1 6 1 1 6 1 1 2 0 1 2 0 0 0 3 is diagonalizable and find modal matrix. Find modal, check whether given matrix A is diagonalizable and find modal matrix P and modal matrix से आता है ना जनरली, डी पे ज़्यादा है नहीं. ओके, एंड फाइंड modal matrix P. Okay, so if
इट इज डायगोनलाइजेबल. एक्चुअली यहाँ पे किसी भी थ्योरी क्वेश्चन में चेक करने के लिए आपको नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी क्वेश्चन इसलिए वो पार्ट हमने स्किप करके डायरेक्टली आपको मॉडल मैट्रिक्स क्वेश्चन दिया था. बट एमसीक्यूज में आपको ये भी आने वाला है वेदर दैट गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. ओके, ये आपको एमसीक्यूज में आने वाला है. तो हाउ यू हैंडल दैट पार्ट पहले वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, कैन एनीवन टेल मी हाउ वी in which case given matrix is diagonalizable and in which case it is not diagonalizable? Can anyone tell me? Sir, first of all, matrix of P, I mean, sir, determinant of P must not be 0. For that, P we have to calculate eigenvalues of A and eigenvectors. Okay, if I calculate eigenvalues and eigenvectors, then what? And then, sir, we get P matrix, sir, by eigenvectors. Yes, yes. Then we can check if its determinant is 0 or not. If not, then we can find. Okay. I mean, then we can say Correct, that correct. it's Okay. Your approach is correct. Okay, ठीक है. पहले मैं इस approach से ही solve करके देता हूँ. So in solution, what is given? We have given A matrix. So A is equal to 1, 6, 1, 1, 2, 0, 0, 0, 3. Now let me give you all results, okay, by which you can check whether given matrix is diagonalizable or not. Okay, so let me write a remark here. क्वेश्चन में देता हूँ तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है. हाउ टू चेक डायगोनलाइजेशन, और ठीक है. So let me give you few results here. पहला रिजल्ट, ओके, if all eigenvalues of given matrix are distinct, means non-repeated, then it is always diagonalizable. Then it is always diagonalizable. समझ में आ रहा है पहला रिजल्ट क्या है? क्या है पहला रिजल्ट? अगर आपके सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आते हैं, नॉन रिपीटेड आते हैं, कोई भी आइगन वैल्यू रिपीटेशन में नहीं आ रही है, इन दैट केस इट इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल. तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन में डायगोनलाइजेबल है कि नहीं चेक करने के लिए आप पहले क्या करोगे? व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? आइगन वैल्यूज. फर्स्ट वी फाइंड आइगन वैल्यूज. अगर सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आते हैं तो वो कंफर्म क्या होगा? इट इज 100% डायगोनलाइजेबल. प्रॉब्लम कहां पे होगी? प्रॉब्लम कहां पे होगी? जहां पे आइगन वैल्यूज रिपीटेशन में आते हैं, जहां पे आइगन वैल्यूज रिपीटेशन में आते हैं. तो वो केस आपको एमसीक्यूज में नहीं आने वाली. जनरली आपको ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट ही रहेंगे, ओके, और आपको बस ये चेक करना है कि वेदर इट इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. ओके, नेक्स्ट केस, इफ, इसको कैसे लिख के दूं मुझे ये नहीं आ रहा है. इफ आइगन वैल्यू लैम्बडा is repeated n times and corresponding to lambda there are n eigenvectors, then also it is diagonalizable. मैं सिंपल वर्ड्स में दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ. क्या है आपका सेकंड रिमार्क? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? अभी पहले केस क्या है, जहाँ पे सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो डिस्टिंक्ट है तो वो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी सेकंड केस में क्या ले रहा हूँ, जहाँ पे आइगन वैल्यूज आपके रिपीटेशन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वन आइगन वैल्यू है, 2 बार रिपीट हो रही है. सपोज जैसे आपके आइगन वैल्यूज है, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर कंपलसरी मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है.
जो रिपीटेशन में आता है ना उसमें प्रॉब्लम है। तो ये सो हियर यू कैन सी दिस वन आइगन वैल्यू रिपीटेड 2 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? बोलो जल्दी। आइगन वेक्टर भी 2 होने चाहिए। हाँ, तो 1 के करस्पॉन्डिंग भी आपको 2 आइगन वेक्टर मिलने चाहिए वहां पे। तो अगर ऐसे केसेस में आपको ये चेक करना है कि वेदर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, तो आप क्या करोगे? आप 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करोगे क्या? इफ आई वांट टू जस्ट चेक वेदर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, तो मैं क्या करूंगा? 2 का आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करना है या नहीं? आपको डायरेक्टली जो रिपीटेशन का पार्ट है उसके आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने। तो जितने बार वो रिपीट हो रहा है, अगर सेम आइगन वेक्टर्स मिलते हैं तो ही वो क्या होगा? डायगोनलाइजेबल, अदरवाइज इट इज नॉन डायगोनलाइजेबल। नॉन डायगोनलाइजेबल। ओके, इतना ही है इस टॉपिक में। यस सर। ओके, एंड सर इसलिए ना सर, क्योंकि आइगन वेक्टर जो है रिपीट हो जाते हैं, फिर वो मैट्रिक्स आइडेंटिकल, Correct, मतलब रोज correct. आइडेंटिकल हो जाते हैं। यस, क्योंकि 1 1 2 में ओके अगर आपको 1 के करस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा, तो जब आप पी मैट्रिक्स लिखते हो जिसमें 2 वैल्यूज सेम ही आएंगे ना, 2 कॉलम्स आर सेम ना, क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग पहला आइगन वेक्टर, 1 के करस्पॉन्डिंग सेकंड आइगन वेक्टर, बट दोनों सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। दिस इज द रीजन। ओके, यस सर। okay, so now let us check for this given matrix। ठीक है, just remember these 2 results। ऐसा कोई रिजल्ट है नहीं, बट दिस इज द वे टू चेक whether given matrix is diagonalizable or not। Okay, yeah, so let me first write the characteristic equation। So the characteristic equation of matrix A, what is that? Lambda cube minus trace of A into lambda हाँ, square। so 5 and 1 is 6 lambda square plus, can you tell me minor here? So first का minor क्या है? 6। 5 सर, मतलब Sorry. टोटल 5 समझे सर। क्या क्या? हाँ सर, टोटल टोटल एडिशन 5। Okay, माइनस के एडिशन ये 5 ना? हाँ। Okay, हाँ। good। And then what is determinant? 12 प्लस सर -12 Minus 12। माइनस प्लस 12 हो जाता है। Okay, तो ये प्लस होगा। सर -12 डिटरमिनेंट। ठीक है, ठीक है, प्लस कर देता हूँ। ओके, डन। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैन यू टेल मी द रूट्स? प्लीज टेल मी रूट्स। सर -1 3 and 4। -1 3 and 4। 4। तो क्या होगा आपका कंक्लूजन? वेदर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल? यस। ओके, तो आप लिख सकते हो इमीडिएटली आफ्टर दिस। सो हेंस गिवन मैट्रिक्स A is diagonalizable। डन, एक पार्ट तो आपका हो गया। अभी आपको क्या करना है? वी हैव टू डायगोनलाइज दैट गिवन मैट्रिक्स। उसके लिए आपको हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर चाहिए। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट फ्यू स्टूडेंट्स, या मैं डिवाइड कर, ठीक है, फ्यू स्टूडेंट्स प्लीज कैलकुलेट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 3 एंड कुछ स्टूडेंट 4 के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करो। सर आइगन वेक्टर सर हमें सिर्फ मॉडल मैट्रिक्स पी के लिए चाहिए ना सर? Yes, उसके yes, अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ती? नहीं है, नहीं है। अगर क्वेश्चन में आता कि पी कैलकुलेट करो तो ही ये सारा पार्ट होगा आइगन वेक्टर का। नहीं तो सर लैम्बडा की वैल्यूज लिखने के बाद ही डायरेक्टली लिख सकते हैं ना सर? Yes, yes, but if it is in repetition, then there Then we is have no to choice। check, yes, sir. हाँ, तो Yes, उस केस sir. में चॉइस नहीं है। करेक्ट, या सो क्विकली कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू -1 3 and 4। कुछ स्टूडेंट 3 के करस्पॉन्डिंग करो, कुछ स्टूडेंट 4 के करस्पॉन्डिंग करो। मैं 1 के करस्पॉन्डिंग करता हूँ। सो टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स, लेट मी कंसिडर केस 1। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू -1, so for that we have to consider a minus lambda I times x is equal to 0, that is a plus identity times x is equal to 0। now what is your A matrix, which I need to सर check। A मैट्रिक्स इज 1 6 1। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ऐड करना है ना आपको। यस सर। So आपने सर -1 दिया can you ना, tell तो me? सर हाँ सर पूरा सर आएगा फिर सर 0। ओके, पहले मैट्रिक्स बोलते ही है 2 सर Six, मैट्रिक्स इज 1 6 1 6 1 ना, प्लस उसमें आइडेंटिटी ऐड करना है ना, 1 ऐड करना है। यस सर। 2 6 हाँ, 1। 2 6 1 है। हाँ, 2 6 हाँ 1। इट वाज -1, सॉरी सर। हाँ, 2 6 1 then Then- 1 3 0।
1 3 0. 0 Then 0 okay. 0 4. Okay, हाँ, then 0 0 4 times x1 x2 x3 is equal to 0 0 0. ठीक है. And then you can interchange this row and you can convert this into echelon form. So I will do it quickly. So let me take this as my first row 1 3 0. This as my second row 2 6 1, and this as my fourth row. Okay. So after that there is no change in first row 1 3 0. Now this row minus 2 times this 0. This row minus 2 times this 0. This row minus 2 times this is 1. And what I will do, I will divide this row by 1. So can I write this directly 0? Yes, sir. क्योंकि अभी आप एमसीक्यू जैसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज माय फाइनल एक्लोन फॉर्म. सो डिवाइड बाय 1 या डिवाइड बाय 4? इसको 1 से डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो ना इस यहाँ से, तो ये 0 हाँ, yes sir. कैसे भी मतलब यू कैन मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड देन यू कैन सब्ट्रैक्ट, सो इट डिपेंड ऑन यू. एट देन ये 0 हो ही जाएगा. सो ओके, सो इफ आई राइट द इक्वेशंस, अभी आपको पता ही है रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए. एक्चुअली ना यही से समझ में आता है कि आपको कितने आइगन वेक्टर्स मिलने वाले हैं. करेक्ट ना, रिपीटेशन के केस में. यस सर. यस और नो. अगर इसकी रैंक 1 आती है तो आपको कितने आइगन वेक्टर्स मिलेंगे? 2 ना. कैन यू सर प्लीज वरची स्टेप नाही कळले सर वरची स्टेप करेक्ट नाही करता का? क्या क्या सर ते वरची स्टेप एक्सप्लेन करा नाही काय नाही समजलं, सॉरी. कॅन यू रिपीट अगेन? सर म्हणजे ते कन्वर्ट कसं करायचं सर तुम्ही ते इक्वलंट फॉर्म मध्ये ते नाही समजलं. अरे इथपर्यंत तर समजलं ना 0 0 1 काय आले हे. सेकंड रो में क्या किया मैंने, दिस रो माइनस 2 टाइम्स दिस रो ना, तो 6 माइनस 6 0 1 माइनस 0 0. ये तो समझ में आ रहा है ना सेकंड रो. हाँ यस सर. हाँ, अभी थर्ड रो में आप क्या करो, यहीं पे रहने दो, इसको 4 से डिवाइड करो, 1 आ जाएगा यहाँ पे. देन सब्ट्रैक्ट करो ना, इस रो से सब्ट्रैक्ट करो. हाँ सर अंडरस्टैंड. हाँ, वो आगे के स्टेप से मैं अब डायरेक्टली कर रहा हूँ. ठीक है, अभी उतना आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ, मतलब फिर आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने में आपका पूरा टाइम जाएगा. हाँ, अभी ये जंप करना आना ही चाहिए आपको, अदरवाइज इट टेक्स मतलब ये यूनिट फिर आपको कवर होगा नहीं, क्योंकि इसमें आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद ही थ्योरी समझ में आती है. सो योर रैंक इज 2 which is less than number of variables, therefore system has infinite solution. सर इधर a, b नहीं ना, रैंक ऑफ a, 0 लिखना चाहिए ना, कि चलता है? यस यस, a, 0 ये होमोजेनियस ही है. ओके, एंड देन इफ यू राइट x1 plus 3x2 is equal to 0 and x3 is equal to 0. So how many equation? There are 2 equation, variables are 3. एक वेरिएबल को आपको असाइन करना होगा. So can you tell me? x2 is equal to t. Yes, so let assign x2 as t. So where t belongs to r, so x1 is minus 3t and x3 is 0. So this eigenvector is, so eigenvector x is बोलो minus 3 1 0. minus 3 1 0. Yes. ठीक है, is the eigenvector corresponding to lambda is equal to -1. अभी आगे का जो कैलकुलेशन है मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ओके, अभी आपको पता ही है. सो कैन यू टेल मी डायरेक्टली व्हाट इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू 3? 3 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 5 1 4. हाँ, okay. हम चेक कर सकते हैं करेक्ट है कि नहीं. एक मिनट. हाँ, बोलो क्या था? सर 5 1 4. 5 1 4 is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 3 ना. यस सर. हाँ, can you tell me that last? Yes, sir. 2 1 0. 1 0 is the eigenvector corresponding to lambda is equal to 4. अब ये कैलकुलेशन एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको परफेक्ट समझ में आ रहा है. ओके, एंड नाउ
we can check whether these eigenvectors are correct or not because it must satisfies this condition, the diagonalizable condition. क्या है वो? ये it must satisfies this condition. So let me check. Okay, so with this now we have to just mention what is our D matrix and what is our, okay, let me minimize this, and what is our P matrix. Okay, so now focus here. So let, या आप चूज कर रहे हो, so let take D which is the diagonal matrix. Can you tell me D क्या होता है? A matrix which contain eigenvalue और diagonal. बट सीक्वेंस से कंसिडर करो, जिस सीक्वेंस से ये कंसिडर करने वाले उसी सीक्वेंस से आइगन वेक्टर कंसिडर करने. सो -1 0 0 0 3 0 0 0 4. So take this as the diagonal matrix. And what is P? -3 1 0 in column तो wise. ये सीक्वेंस बस आपको मैच करनी है. -3 1 0 5 and 4 5 1 4 2 1 0. 2 1 0, and you can check. Okay, this let D and let this as P. Therefore you can check D is equal to P inverse A into P. चेक करके आप देखो, ये ऐसा ही लिखने को क्योंकि वो आने ही वाला है, बट आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आपका कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं. सो यू कैन चेक, यू कैन store A matrix, you can store P matrix, and then just check whether this product is correct or not. Check करो आप quickly. करो. ये एक ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं MCQs लेता हूँ कुछ, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, आइगन वेक्टर से कैलकुलेट करना है, आइगन वेक्टर्स P में रखने हैं, आइगन वैल्यूज D में रखनी, हो गई थियरी. इतना ही है इस टॉपिक में. What is A matrix? Let me take that first. चेक करो, जिसको आता है मुझे बोलो. So 1 6 1 1 2 0 0 0 3. ये हो गया स्टोर. P स्टोर करता हूँ. सो क्या है वो? -3 5 2 1 1 1 0 4 0. Done. Now what product I want here? मैट B जो था उसका इनवर्स, करेक्ट, फिर मैट A, फिर मैट B. क्या मिल रहा है? मैट्रिक्स को ले लीजिए. ओके, तो इट मीन्स कहीं पे ना कहीं पे आपने, अभी आप देखो कैसे चेक करना है. ओके, हाँ, आप मुझे ये बोलो, जो पहला आइगन वेक्टर है उसके करस्पॉन्डिंग मैच हो रहा है ना? थर्ड जो आइगन वेक्टर उसके करस्पॉन्डिंग मैच हो रहा है. तो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन सेकंड आइगन वेक्टर. क्रॉस वेरीफाई क्विकली. देयर इज अ मिस्टेक इन 3. सर आई 1 1 4. क्या आ रहा है? 1 1 -4 1 1 -4 1 1 -4. -4. ओके, तो आपको ये भी समझ में आता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे थी. ठीक है, एंड अगेन अभी आपको कैलकुलेट करने के लिए मुझे पहले वो मैट्रिक्स चेंज करना होगा. 1 1 -4 ना. सो आई नीड टू चेंज दिस एंट्री. इसलिए बोला कि ये वेरीफाई करो तो ही समझ में आएगा. सो कहाँ पे करना है मुझे? सेकंड मैट्रिक्स में चेंज करना है ना. सो अरे लेट मी एडिट सेकंड मैट्रिक्स विच इज 1, एंड ये एंट्री क्या है? दिस एंट्री इज -4. नाउ लेट मी चेक अगेन. सो option 4 matrix inverse, then A matrix, and then B matrix. ओके, डन. तो ये करेक्ट है. ये भी आपको क्वेश्चन छोड़ना है. चेक आगे लिखने की जरूरत है क्योंकि ये आने वाला है. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल D मैट्रिक्स, दिस इज योर फाइनल P मैट्रिक्स. डन.
यही थ्योरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? मैं बस वैल्यू चेंज करूंगा, आइगन वेक्टर्स आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने, बट इसके बाहर आपको कुछ भी पार्ट इस पे नहीं आने वाला। सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन नाउ, सो दैट आई विल टेक सम एमसीक्यूज। नो सर, इट्स फाइन। ओके, डन। ना सर वो लास्ट में, सर जो लास्ट में जो स्टेटमेंट है सर, इसको फिर कंफर्मेशन के लिए कैलकुलेट नहीं करना है ना सर? मतलब वो d इक्वल टू p एक्चुअली अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है ना वेरीफाई दिस, तो आप बस ये शो करो वहां पे, p इनवर्स रखो, a रखो, p रखो, एंड मतलब LHS से स्टार्ट या RHS से स्टार्ट करके शो करो इसको RHS, है ना। इफ अगर वहां पे आता है कि वेरीफाई, मैंने लिया एक क्वेश्चन ऊपर, आप चेक करो वेरीफाई के केस में वो आने ही वाला है, आपको बस वैल्यूज रख के लिखना है कि ये प्रोडक्ट RHS आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई का नहीं डाला, मल्टीप्लिकेशन वगैरह नहीं करना है ना सर? या फिर क्या क्या नहीं, वो शो नहीं करना है। डायरेक्टली कैल्सी में आप ये प्रोडक्ट मतलब क्या करो, कैल्सी से आप p इनवर्स निकालो, a रखो, p रखो, तीनों का प्रोडक्ट डायरेक्टली d लिखो, लिखना है बस, क्योंकि वो आने वाला। हाँ ठीक है। नाउ लेट मी टेक सम MCQs ऑन दिस पार्ट, इज द लास्ट पार्ट नाउ। यस, तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, यू हैव टू जस्ट चेक whether which matrix is diagonalizable, which matrix is not. Okay, so फाइनल आंसर में क्या लिखा सर? कुछ नहीं, बस d इक्वल टू p। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था, फाइंड अ मॉडल मैट्रिक्स, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फाइंड अ मॉडल मैट्रिक्स, इतना ही था ना क्वेश्चन। बट जब आप मॉडल मैट्रिक्स लिखते हो, राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग d आल्सो, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, इन दैट केस आल्सो यू हैव टू राइट डाउन दैट d, क्योंकि ये p d पे डिपेंड होता है ना। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड अ मॉडल मैट्रिक्स, तो आपको वहां पे डी भी मेंशन करना। एक्चुअली यहीं पे क्वेश्चन एंड हो रहा है, ये आपको मैंने क्यों दिया था, जस्ट टू वेरीफाई वेदर योर पी मैट्रिक्स इज करेक्ट और नॉट। यस यस सर। ओके, हाँ। एंड नाउ लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, आप बस मुझे ये बोलना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन 1, identify diagonalizable matrix। आप ये चाहो तो लिखो। So let me give you some examples. A, अब बाद में बोलो, पहले मुझे मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेता हूँ। 2 1 बी क्वेश्चन, जनरल 2x2 के ही रहेंगे। 1 1 मैं भी रैंडम ही दे रहा हूँ, कुछ भी थॉट नहीं है उस पर। इसके लिए सिर्फ आपने जो 2 रिमार्क्स दिए थे वही ध्यान में वही यूज रखना है। करने, वही यूज करने। एक और देता हूँ। इससे इजी भी आ सकते हैं, मैं मतलब दे रहा हूँ। सर जिस केस में तो केवल 2 ही आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं सर, वो तो डायगोनलाइजेबल है ही नहीं ना सर? नहीं, ठीक है। आई थिंक नाउ दिस मेनी एग्जांपल्स आर इनफ। चलो इन बिटवीन माइनस ऐड कर देता हूँ। हाँ, अभी आप मुझे रीजन के साथ बोलो कि कैसे करना है। अभी जहाँ पे ओके, तो इससे ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। सो व्हाट अबाउट फर्स्ट, डायगोनलाइजेबल और नॉट? Yes sir, diagonal. Because the eigenvalues are 2 and -1, these are distinct, है ना, रिपीटेशन में नहीं है, hence it is diagonalizable। डन, यही जनरल आएगा। हाँ, नेक्स्ट में कैन यू से डायरेक्टली इट इज डायगोनलाइजेबल और नॉट? डायरेक्टली बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि इसके आइगन वैल्यूज रिपीटेशन में आ रहे हैं, रिपीटेशन में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको 1 के करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं वो चेक करना होगा क्विकली। फिर से सुनो, ऐसे केसेस में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 1 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स ही चेक करने होंगे। अभी अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूं,
वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मुझे डायरेक्टली कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करना होगा, ए माइनस आई ना। ये Okay. यस अभी मैं क्विक कर रहा हूं इसलिए x टाइम्स इक्वल टू 0 पे नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है तो आप लिखो। ओके, ये भी मैं नहीं लिखने वाला था। ओके, बट ठीक है। सो कैन यू टेल मी दैट मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 0 0। अभी मुझे ये बोलो, इसको अगर अब नाउ दिस इज एन एक्लोन फॉर्म, तो इसमें कितने इक्वेशन आएंगे और कितने इक्वेशन से आएंगे और कितने वेरिएबल्स है? सर वन इक्वेशन, सर One वन equation. इक्वेशन एक ही इक्वेशन आएगा ना। रैंक मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन, ऑलवेज रिमेंबर रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ इक्वेशन, ये सबसे इजी वे होता है। एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2 ना। Two variables. डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। मतलब क्या इसका मतलब क्या है? आपको एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा ना। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर डिफरेंस 1 आ रहा है मतलब आप एक ही वेरिएबल को असाइन करोगे, एक वेरिएबल को असाइन करते हो तो एक ही आइगन वेक्टर मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्रिक। इमेजिन हो रहा है या नहीं? यस यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये डायगोनलाइजेबल होगा क्या? डिफरेंस 1 आता है बट आपको कितने चाहिए थे? जितनी ऑर्डर है उतना ही डिफरेंस आना चाहिए, इतना याद रखो। जितने बार वो रिपीटेशन में आ रहा है ना, उतनी ऑर्डर यहाँ पे चाहिए। 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 चाहिए था, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 चाहिए था यहाँ पे। ठीक है। सो हियर यू कैन सी, अभी मैं लिख रहा हूँ भाई, क्या बोल सकते हैं आप इसको, मैंने ऊपर क्या दिया था? हाँ, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। करेक्ट ना? 2 आइगन वेक्टर चाहिए थे आपको, बट आपको कितने मिल रहे हैं? यू विल गेट ओनली 1, हेंस इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल। देखो कितना टाइम जा रहा है आपका, 2 मिनट में हो जाएगा ना कैलकुलेशन। यस सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। हेंस देयरफॉर हेंस नॉट डायगोनलाइजेबल। जस्ट 1 मिनिट। हाँ, त्याच्यानंतर मॅडमचं लेक्चर आहे. हाँ, तर मॅडम यायला उशीर होणार. मॅडम म्हणले तुम्ही कंटिन्यू करा. अजून एक लेक्चर आहे. मॅडम जरा आले, गाडी चालवत नाही मॅडमची. ओके ओके, हेंस इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, क्लियर? यस सर। Okay, recording starting. Now, what about next question number C? सर डायगोनलाइजेबल। हाँ, because eigenvalues are -1, 3 and 10, hence it is diagonalizable. Okay, done. Next. सर वी हैव टू चेक फॉर 1 ओनली। हाँ, eigenvalues क्या है? 0 and 1 ही है, या 0 1 1 है। तो 0 रिपीटेशन में नहीं है, तो 0 के लिए चेक करना ही नहीं है, जस्ट चेक फॉर 1। तो 1 के लिए चेक करना मतलब आपको कौन सा मैट्रिक्स चेक करना है? A माइनस लैम्बडा, A माइनस आई का ना। इसकी रैंक देखनी होगी आपको। A माइनस आई की रैंक कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 0 -1 1 0 0 0 0 0 0। बोलो कितनी रैंक है? रैंक मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन। कितने इक्वेशन आएंगे? सर 0 0 माइनस तर 0 0 0 माइनस यहाँ पे ना, लास्ट सॉरी, हाँ, एक रह गया, तो इसको मुझे ऊपर शिफ्ट करना होगा, है ना। सो लेट मी डू दैट। तो फिर ये नहीं होगा। ठीक है, यस, 0 0 -1 0 0 0। ओके, इट इज क्लियर नाउ? ओके, नाउ दिस इज एन एक्लोन फॉर्म। तो कितनी रैंक है इसकी? 2। 2। कितने वेरिएबल्स थे? वेरिएबल्स कितने थे? 3। डिफरेंस आ रहा है 1 आ रहा है मतलब एक ही मिलेगा। 2 बार वो रिपीट हो रहा है, दैट वैल्यू रिपीटेड 2 टाइम्स, बट आइगन वेक्टर कितने मिल रहे हैं? एक ही मिल रहा है। सो इट्स डायगोनलाइजेबल? नो। Therefore we get only one eigenvector
करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 1. आपको 2 चाहिए थे क्योंकि 2 बार आइगन वैल्यू आ रही थी, बट यू विल गेट ओनली 1, देयरफॉर इट इज नॉट डायगोनालाइजेबल, हेंस not diagonalizable. Done. This is all about this last topic. Okay, now I will take some more MCQs on this. अभी मुझे एक्चुअली जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है मैम को थोड़ा लेट हो रहा है, सो टिल दैट टाइम आई विल टेक सम एमसीक्यूज एंड आफ्टर दैट जैसे मैम आ जाते हैं मैम विल कंटिन्यू द लेक्चर. ओके, सो टिल दैट टाइम विल डिस्कस सम एमसीक्यूज और ट्यूटोरियल में फिर मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ आपका. ठीक है, बट उसमें आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू बिकॉज देयर आर फ्यू पार्ट्स विच इज प्योरली बेस्ड ऑन द फिजिक्स. ओके, देखते हैं इतना कैसे कर सकते हैं उसको कवर. Okay, I think it's better that let me convert this into a PDF. Okay, दे दो बस मुझे. Sir, बोलो ना. sir, for I there is only 1 unit, no? No, 2 units are there. तो आज के लिए आज ट्यूटोरियल में जो लेक्चर होगा वहां तक आपको सिलेबस है आई में. सर मतलब आज जितना पढ़ा है उतना ही आएगा सर? उतना ही आएगा आई में. MCQs बेस नहीं है, ओपन बुक टेस्ट है, थियोरेटिकल बेस है. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे, या आप क्लासरूम पे चेक करो. अभी थोड़ा क्या हो रहा है, वी आर टोटली बिजी इन योर सर सेकंड. उसमें टाइमिंग सब मेंशन किया सर, कितने मार्क्स का होगा सर वो? 20 मार्क्स का होगा. 20 मार्क्स का. यस सर, 20 मार्क्स का. 20 मार्क्स का. देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस. यस यस. यूनिट 1 पे 2, यूनिट 2 पे 2. ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ, बट अगर कुछ चेंजेस है तो दैट आई विल लेट यू नो. ठीक है, कितने क्वेश्चन सर? सी क्वेश्चन 1 के लिए क्वेश्चन 2 और होता है. क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन, ऐसे जनरली पैटर्न होता है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ एनी चेंजेस इज देयर आई विल लेट यू नो. ओके, मैं दिखाता हूँ क्या पैटर्न है. Yes, sir. दिस मेल. Sir, MCQs है या? नो, इट्स थियरी बेस्ड. इसको कैसे करें? ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें. ठीक है, एलिटिव पे. सी पैटर्न आपका ऐसे होगा एज पर माई प्रीवियस एक्सपीरियंस. ओके, क्वेश्चन 1 देर आर 2 क्वेश्चंस A and B, 5 mark, और क्वेश्चन 2 सेम वे 5 mark, and this all whole on unit 1 and same रिपीट होगा यूनिट 2 के लिए. ऐसे आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने 20 मार्क्स के लिए. हो गया क्लियर? क्लियर. सेम रिपीट करो नीचे यूनिट 2 का. तो क्वेश्चन 2 ऐसा ही ना? हाँ, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4. तो आपको इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है, और 3 और 4 में से एक करना है. यस सर. बट सर ये 5 मार्क्स के लिए पूरा एक ही क्वेश्चन आएगा सर? एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा. एंड सर इट्स ऑफ 1 आवर सर? इट्स 1 आवर. सर क्वेश्चन 1 लिया तो क्वेश्चन 1 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे ना? ये यस, यू कांट सॉल्व फ्यू फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड फ्यू फ्रॉम क्वेश्चन 2. एक तो इनके दोनों करो या सेकंड के 2 करो. यस सर. ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ कि इसमें चेंजेस रहेंगे. आई डोंट नो द फर्स्ट ईयर पैटर्न एग्जैक्टली. ये फर्स्ट टाइम आई एम टेकिंग फर्स्ट ईयर में, तो मैं सेकंड ईयर में था अभी तक. तो बट यही पैटर्न होता है. अगर कुछ चेंजेस हो तो आई विल लेट यू नो. इसलिए मैं क्लियर कट पैटर्न आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. कब है एग्जाम आपकी? सर
27, 28, 29 सर. 29th को LAUC का है. ओके, मैथ्स का 29 को है ना, सो वी हैव इनफ टाइम. ठीक है, और प्रिपरेशन भी आपको क्या करना है मैं आपको ओरली बोल देता हूँ कि ऑन विच टॉपिक यू हैव टू फोकस. पहले क्या था, एक्लोन फॉर्म आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है क्योंकि सिस्टम में रिपीट हो ही जाता है. सो फोकस मोर ऑन नॉर्मल फॉर्म. नेक्स्ट सिस्टम सॉल्विंग का क्वेश्चन होगा. ठीक है. थर्ड लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट. क्या रह गया इसमें, हाँ एक और टॉपिक है, इस पे ज़्यादा फोकस करो. हाँ बट वो नेक्स्ट क्या आर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों में से एक पे होगा क्वेश्चन. दिस इज फॉर फर्स्ट यूनिट. सेकंड यूनिट में तो हमने क्या लिया है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स. ओके, ये 50% तो यही है. और उसके बाद हमने क्या लिया है, आई थिंक उसके बाद डायगोनलाइजेशन ही है ना. Yes sir, diagonal. हाँ, तो यही एक क्वेश्चन इसका होगा, एक क्वेश्चन इसका होगा. डन. सेम नीचे आएगा. तो यही पॉसिबिलिटी है, इसके बाहर जाने के चांसेस नहीं है. सॉकर्डिंग. तो क्वेश्चन आपको फिर कैसे भेजना, PDF करके? हाँ, आपको क्या करना है, बिफोर द एग्जाम आप 3-4 पेजेस स्टेपल करके रखो. उस पर अपना रोल नंबर, नेम सब कुछ लिखो वहाँ पे. ठीक है, जैसे ही पेपर आपको आ जाता है क्लासरूम पे, यू विल गेट 1 PDF ऑन क्लासरूम. यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चन. नो नीड टू राइट एनी क्वेश्चन. क्वेश्चन नहीं लिखना है. आप इंटरेस्टेड हो तो आप लिखो, इट डिपेंड ऑन यू. ओके, आप अगर बस इतना भी लिखते हो, क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर और सोल्यूशन स्टार्ट करते तो भी चलेगा. ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट होता है, आफ्टर दैट यू हैव टू स्कैन दैट सोल्यूशन एंड यू हैव टू अपलोड इट ऑन गूगल क्लासरूम. ये प्रोसेस है. ठीक है. Yes sir. So PDF will be on Google Classroom sir. यस, गूगल क्लासरूम. ओके, उसमें भी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो क्या क्या करना है. ठीक है, इन दिस इज फॉर ऑल सब्जेक्ट. बट अगर आपको लग रहा है, सी एट द एंड टाइम इंपॉर्टेंट है. क्या टाइमिंग था आपका? 9 टाइमिंग क्या है? So 9 to मैथ्स का 9:30 to 10:30 है. ओके, सो 9:30 to 10:30. ठीक है, तो इन केस अगर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि गूगल क्लासरूम पे PDF अपलोड नहीं हो रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो इन दैट केस पर्टिकुलरली, क्योंकि वहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट होता है. मैंने ऑलरेडी एक जो एग्जाम ली थी, क्विज ली थी, उसमें जिन्होंने भी टाइम के आगे सबमिट किया उनको मैंने रेड किया है. सो इन दैट केस आई हैव टू रिड्यूस देयर मार्क्स. विल नॉट गेट द फुल मार्क्स. जितना आपने सॉल्व किया उतने मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेंगे. सो योर टाइम इज इंपॉर्टेंट. सेम फॉर दिस एग्जाम ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है आपने आपका कंप्लीट हो गया बट PDF अपलोड में ज़्यादा टाइम जा रहा है, इन दैट केस आप सेपर साइड उस फैकल्टी को व्हाट्सअप करके भी रख सकते हो या आप मेल करके भी रख सकते हो. तो एटलीस्ट क्या होगा कि आपको ये तो कॉन्फिडेंस होगा कि सर मैंने बिफोर टाइम सबमिट करके रखी है. आपको व्हाट्सएप पे आप चेक करो. अभी वो सेम PDF आई विल अपलोड इट ऑन क्लासरूम, बट वो ज़्यादा टाइम लेगी. क्लासरूम पे अपलोड करना ही है, बट अगर ज़्यादा टाइम क्लासरूम पे जा रहा है तो आप पहले व्हाट्सअप करके रखो. तो फैकल्टी को क्या समझ में आएगा, जो मेरे पास उसने बिफोर द टाइम सबमिट की है, सेम PDF इज देयर ऑन क्लासरूम और नॉट. मुझे बस इतना ही चेक करना है. बट एटलीस्ट इसमें आपका टाइम लॉस नहीं होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes sir. तो ये भी चीजें सर आपको. बिफोर 10:30 we have to submit. सॉरी, क्या बोला आपने? सर बिफोर 10:30 we have to यस submit. 10:31 पे वो लेट सबमिशन में जाएगा. 10:30 पे भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. 10:31 पे वो लेट सबमिशन पे आ जाएगा. या टॉपिक में. हाँ, और अगर फिर भी आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो आपको बिफोर टाइम यू हैव टू कम्युनिकेट टू अ कंसर्न फैकल्टी ओनली. तो उनसे कम्युनिकेट करो, सर ये प्रॉब्लम है, सो दे विल गिव यू सॉल्यूशन फ्रॉम देयर साइड. ठीक है सर हाँ बोलो ना. सर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में वो करंट वाले क्वेश्चंस भी क्या मतलब? करंट नहीं, जितना हमने लिया उतना ही. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम MCQs ऑन दिस टॉपिक. ओके, आप बस मुझे क्विकली आंसर बोलते जाओ. आई विल शेयर दिस PDF, डोंट वरी. यस, फर्स्ट रैंक डिनोट्स B sir. B. डिपेंडेंट रोज में बोलो. इंडिपेंडेंट ही होता है ना. आप एक्लोन फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हो, उसमें जो नॉन जीरो रोज है, दो नॉन जीरो रोज आर इंडिपेंडेंट. व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट? क्योंकि वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है. एक रो में, फर्स्ट रो में आप देखो देयर आर लेस नंबर ऑफ जीरोज. सेकंड रो में सपोज देयर इज 1 0. थर्ड रो में देयर आर 2 zeros. तो अगर इस फॉर्म में ऐसे आते हैं ना आपके पास एक्लोन फॉर्म,
तो ये दिस थ्री रोज आर क्लियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसमें दो जीरोज है, इसमें एक ही जीरो, इसमें एक भी जीरो नहीं है. सो एक्लॉन फॉर्म में जितने भी रोज आते हैं दोज आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. सो इट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज. ओके, नेक्स्ट रैंक डिनोट्स. So second A, highest order of non-vanishing minor. Option It is the highest order of non-vanishing minor. Non-vanishing minor means non-zero determinant. ठीक है? Non-zero, yes sir. So non-vanishing, vanishing नहीं. Vanishing means zero. What is the criteria for non-zero matrix A to be invertible? Invertible means inverse exist. Sir, A Sir, is not- non-singular. It is non-singular. ठीक है? What is A inverse? ये फॉर्मूला पता है आपको. Option B. 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 Option B, yes sir. Is the definition. The matrix A has a rank R. Then which of the following statement is true? When we say this R as the rank, B. ठीक है, तो ये मैंने नहीं लिया है, बट ऑल दी अबव आर करेक्ट. ओके, आर को अगर आप रैंक बोलते हो तो क्या क्या स्टेटमेंट होता है आर के लिए? देयर एग्जिस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉन जीरो. करेक्ट ना? एक डिटरमिनेंट इस ऑर्डर का नॉन जीरो आता Yes, है. sir, yes, sir. हाँ, तो ये करेक्ट है. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉट जीरो. एंड एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर, मतलब आर प्लस वन के सारे डिटरमिनेंट क्या आते हैं? जीरो आते हैं. तो ये भी करेक्ट है. एंड दिस इज द इन जनरल, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था. इफ आई कंसीडर अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, तो इसकी रैंक क्या आती है? लेस इक्वल 3 आती है ना, क्योंकि हाईएस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होता है? 3 होता है. सो इट इज ऑलवेज लेस इक्वल मिनिमम ऑफ m, n. क्लियर? क्लियर और नॉट? नहीं समझ में आता आप मुझे ना बोलो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन डिटेल. ठीक है? सर फिफ्थ वाला फिर से एक्सप्लेन करेंगे. फिफ्थ वाला, ओके. ये डेफिनेशन ही है. एवरी माइनर हाँ, सो इसका आंसर बी रहेगा. if I want to say R as the rank, तो डेफिनेशन क्या थी? There must exist one सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R by R whose determinant is not equal to 0. एक R by R का डिटरमिनेंट मुझे नॉन जीरो चाहिए. एंड ऑल द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R+1 by R+1 R0 R0. So ये इन दोनों का मतलब वही है. एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर R is non-zero, all the minors of order R+1 are 0. एंड थर्ड क्या है? Sir, हाँ बोलो. sir, the minimum of m, n means what? Sir, next. इन दोनों का मिनिमम क्या है? 3 and 4 का मिनिमम क्या है? 3 ना? ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, इसकी रैंक क्या आएगी? कैन इट बी अ 4? लेते हैं 3. हाँ, 3 और लेस इक्वल 3. ठीक है, अभी मुझे ये बोलो व्हाट इज द मिनिमम ऑफ 3,4? 3 ना? इन दोनों, अरे 3 और 4 का मिनिमम नंबर कौन सा है? मीन मींस मिनिमम 3 ना. तो बेसिकली क्या होता है? इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, इट्स रैंक इज ऑलवेज लेस इक्वल द मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस टू. करेक्ट ना? यस? Yes. सबको क्लियर हो गया ये पार्ट? आप ऐसे केसेस में क्या करो, नंबर लेके देखो. 3 और 4 में 3 लेस इक्वल 3 आएगी. ओके, 3 और 7 में या 4 और 7 में लेस इक्वल 4 ही आएगी. इट मींस इट इज ऑलवेज लेस इक्वल मिनिमम ऑफ दिस टू नंबर्स. सो ये करेक्ट आ रहा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, few statements are I know they are not that much trivial. If a matrix A has all its minor of order R+1 0, उनका कहना क्या है? अगर R+1 के सारे डिटरमिनेंट 0 आते हैं तो R+1 की भी रैंक आएगी क्या? No, sir. No, sir. R+1 के अगर सारे डिटरमिनेंट 0 आते हैं तो R+1 की भी रैंक आएगी नहीं आएगी? मतलब आपकी रैंक क्या होगी? स्ट्रिक्टली लेस देन R+1. Less than or equal to. Yes, sir. सो व्हाट इज योर Less आंसर? than or equal to. Option B, sir. B. ठीक है, तो आप देखो एक ही स्टेटमेंट था कितने एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं. देयरफॉर यू नीड टू गो थ्रू दिस ऑल एमसीक्यूज. So echelon form of a matrix is one of the method to find out rank of a given matrix. In echelon form we use only Only row transformation. row transformation. ठीक है. Next, if a matrix B is obtained from matrix A by subjecting to any elementary row or column transformation, मतलब B मैट्रिक्स कैसे मिल रहा है? A पे अगर आप कुछ elementary transformation परफॉर्म करते हो तो then which of the following is correct option? So, First, na, in that case, A and B are equivalent. Okay, I need to find what is the notation for similarity. I don't think so कि ये similarity के लिए use होगा, but I will find. Okay, कि क्या exactly notation है. But this is the notation for equivalent that I know. all right. All over. Sir, second is also तो ये correct है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ बोथ मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, ये तो आपने नॉर्मल फॉर्म में आप या इक्विवेलेंट फॉर्म में आप यही करते हो ना, गिवन मैट्रिक्स को रेड्यूस करते हो उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में, और फिर आपका क्या कहना होता है, इसकी जो रैंक है वही रैंक एक ही आती है। सो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। इट मींस it means if you apply any elementary transformation on a given matrix, it will not alter rank of that matrix. Elementary transformation से rank पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? That is your third statement. Elementary transformation does not alter rank of the matrix. All three are correct. Okay. This part is not there in your syllabus. ये भी इसको अभी इतना ट्रिवियल नहीं है वो रिजल्ट, सो लेट मी स्किप इट। ठीक है, नेक्स्ट। ये सारे समझ में आ जाएंगे वैसे, ठीक है, मैं ले लेता हूँ। X इक्वल टू बी अ सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस एंड n अननोन्स व्हेन द सिस्टम विल कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट क्या आती है? इन विच केस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, रैंक ऑफ A is always equal to rank of augmented matrix. If it is homogeneous, then what is condition on B? null matrix. It must be zero matrix, okay, null matrix. हाँ, so okay, so for that I need to explain in detail, so I will keep this, I will explain this later on. Okay, कुछ क्वेश्चन है जिसमें मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा। So M by N homogeneous system of equation where A is a singular matrix. ये आपके पास एक homogeneous system है जिसमें A आपका singular matrix है। Then that system has बोलो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है सर, नॉन सॉरी सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A determinant of A is not equal to 0, तो सिस्टम कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसका रीजन भी क्या है पता है आपको? इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी ना, ओके। सो इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन और इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। अभी यूनिक ही दिया है तो इसको टिक करता है। Which of the following is not a solution vector for a non-homogeneous linear system of equation? सर सी। Correct ना? If it is a non-homogeneous system, तो B मैट्रिक्स नॉन जीरो होगा ना? B मैट्रिक्स नॉन जीरो होगा तो ये कभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा ही नहीं, 0 0 0, करेक्ट? सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए ये वैल्यू और B वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, करेक्ट ना? If it is a solution, then these values must be equal to B matrix. मतलब if I put x1 is 0, x2 is 0, x3 is 0, उसका जो आंसर होता है वो आंसर इक्वल टू क्या चाहिए? B matrix. So C is the answer. ठीक है, इसका मतलब क्या है? x1 x2 x1 minus 3x2। नॉन होमोजेनियस अगर मुझे लेना है, नॉन होमोजेनियस के केस में मुझे राइट साइड में नॉन जीरो एंट्री कहीं पे लेनी होगी। सो लेट मी टेक हियर नॉन जीरो, या दोनों नॉन जीरो ले सकते हो। तो यहाँ पे x1 0 and x2 0 never be the solution of this system. Why? Because your right side values are non-zero. आप चेक करो ना, यहाँ पे अगर आप 0 0 पुट करते हो तो 0 equal to 1 मिलता है, therefore it is not a solution. Therefore C, which is 0 0 0, is never the solution of that system. X equal to B having infinite number of solution, then rank of matrix A. सर लेस देन ऑप्शन n मतलब लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके गुड। सेम क्वेश्चन है, होमोजेनियस सिस्टम है, A सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन सिस्टम इनफाइनाइट। नाउ LDN ट्रांसफॉर्मेशन, ये रेगुलर ऐसा कुछ नहीं लिया, छोड़ो। A square matrix is orthogonal. What is the definition? What is the definition of orthogonal matrix? A into A transpose is identity actual definition है, but इसमें एक और रिजल्ट आपको मिलता है that A transpose and A inverse are equal, correct? A transpose and A inverse are equal. So I think this B. A is orthogonal matrix if
A into A transpose is identity. A is orthogonal matrix, then A inverse is C. it is also orthogonal. ये मैंने दिया था. If A is orthogonal, not only A inverse, A transpose is also orthogonal. A अगर orthogonal होता है तो उसका transpose भी orthogonal होता है, उसका inverse भी orthogonal होता है. This is the result. Clear? If A is orthogonal matrix, then D. All of this are all correct, sir. All correct. A transpose orthogonal, A inverse orthogonal, determinant is the all are correct. Good. It's orthogonal linear transformation. Then A must be orthogonal matrix. ये आपको मतलब ये मैंने आगे से दिया था. If A is a singular, then it is called a singular linear transformation. If A is a non-singular, then it is called as non-singular linear transformation. Like that. Okay. Next, if A is an orthogonal matrix, then A inverse is A transpose. transpose. ये क्वेश्चन दिया था मैंने शायद. X equal to A y equal to B z be the linear transformation then which of the following? ऑप्शन ए Z to X. A sir. Z to X में Y की वैल्यू रखो. सो A भी आएगा. ऑप्शन ए. उसको मैं करेक्ट ये करके आपको अपडेट किया इसको. ठीक है. If A is a 4x5 matrix and all row vectors are linearly independent, then rank of A. Imagine करो. 4x5. 4 sir. ठीक है. और सर हाँ, तो अगर ये रो वेक्टर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है तो रैंक क्या है 4 ही आएगी ना, क्योंकि लैंड इज ऑलवेज लेस इक्वल 4. और ये जो 4 काउंट है, या इफ आई वांट टू से R एज द रैंक, तो ये सारे वेक्टर ऑलरेडी इंडिपेंडेंट आते हैं. सो देन रैंक मस्ट बी 4. जितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आते हैं उतनी रैंक होती है. रिमेंबर ऑलवेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज इक्वल टू रैंक. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इज इक्वल टू रैंक. If A is a 4x3 matrix and all row vectors are linearly dependent. Rank is 1. No, रुको. कितने रो वेक्टर्स थे? पहले मुझे बोलो कितने रो वेक्टर्स है? 4 कितने रो वेक्टर्स है? 4 है सर. बट ये 4 वेक्टर डिपेंडेंट है, तो 4 तो रैंक कभी नहीं होगी. नहीं सर, एक तो रो 0 होगी. वो हमें पता नहीं ना. That we don't know. But ये So all तो dependent, 4 sir. So all 4 is dependent. never rank of that matrix as they are dependent. So then rank must be strictly less than this 4. It means what? नहीं ना Less equal 3. सर ऑल रोज आर लिनियरली डिपेंडेंट कह रहे हैं ना. Yes, sir. So that's why 1 is okay. See, Rank 1 है. all 4 rows are dependent. It never means कि उनमें से 3 इंडिपेंडेंट आ सकते हैं ना. सर ऑल रोज बोले ना फिर. सर लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होगा ना सर, लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा तो सर 3 अरे कैसे I होगा? mean, सर सॉरी लेस देन 4 रहेगा सर, तो 3 to 1 कोई भी हो सकता कोई भी हो सर सकता ऑल है. लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू 3. करेक्ट ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना. हाँ, तो सर 1 to 3 में से कैसे वेरीफाई करेंगे सर? हाँ, ये है ही नहीं ना ऑप्शन. ये दिया है क्या आपको? दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. Yeah. This is only the correct option. Can you, in every example, can you say that rank is always 1? पहले सुनो. Yes, sir. In every example, can you say that rank is always equal to 1? नो सर बट इस एग्जांपल में ऑल इनमें से आ सकती है ना. करेक्ट ना, इनमें से आ सकती है, बट नॉट फॉर ऑलवेज, नॉट फॉर एवरी केस ना. सर तो जिस ऐसे comment करें. इक्वल होंगे उन सभी केस में रो इक्वल टू 1 आएगी, रैंक इज इक्वल टू. क्या? सॉरी, कैन यू रिपीट? क्योंकि सर 4 रोज लिनियरली डिपेंडेंट है. हाँ. और पहले हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त हाँ. नीचे की तीनों रोज 0 हो जाएंगी. कैसे? जब हम minus कैसे? ये करेंगे. कैसे? सर लिनियरली डिपेंडेंट है ना. अरे लिनियरली डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? सुनो. ओके. If I Zero हो take गया तो x1, 3 आएगा. सुनो. Okay, let me explain easiest way. x1, x2, x3 आपके पास 3 वेक्टर है. अच्छे से सुनो पहले, ठीक है? x1, x2, x3 आपके पास 3 वेक्टर है. ये तीनों वेक्टर अगर मैं बोलता हूँ डिपेंडेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा. करेक्ट ना? यस Yes, करेक्ट sir. ना? हाँ. ओके. तो मुझे ये बोलो, ये तीनों अगर डिपेंडेंट है तो क्या मैं सीधा x1, x2 आर आल्सो डिपेंडेंट बोल सकते हो क्या? नो सर. Yes. नो सर. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर No. लेस देन दैट काउंट ना. ये इंडिपेंडेंट आ सकता है ना. लेट मी शो यू. या ठीक है. ये इंडिपेंडेंट आ सकता है ना, ये दोनों रोज.
ये तीनों मतलब एक रो ऐड करने के बाद मे बी इसका इसके साथ रिलेशन हो सकता है ना, बट ये दोनों तो इंडिपेंडेंट थे ना पहले। इसको कितना भी एग्जांपल आप क्रिएट करके Yes, sir. So what is my conclusion? If the set is dependent, it doesn't mean that that subset is dependent. ठीक है? So if I take 1 0 1, if I take 0 0 1, ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? इसमें एक 0 इसमें 2 0 तो हमेशा so these are always independent. Yes, sir. क्लियर? ये दोनों इंडिपेंडेंट है। या तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल 2 by 2 का लेता हूँ। 1 0 0 1, ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्या? अरे इस वेक्टर से आप ये वेक्टर कैलकुलेट कर पाओगे क्या? नहीं सर। तो ये क्या होंगे फिर? लिनियरली इंडिपेंडेंट। यू कैनॉट फाइंड वन वेक्टर फ्रॉम द अदर वेक्टर। बट अगर मैं यहाँ पे एक और वेक्टर ऐड करता हूं तो अभी ये तीनों वेक्टर क्या बन जाएंगे? डिपेंडेंट। हाउ इट इज डिपेंडेंट? So this is dependent, but if I remove this, it become independent. तो मतलब क्या है? अगर आपका सेट डिपेंडेंट है, if your set is dependent, then it doesn't imply that your subset is also dependent. Okay? वो डिपेंडेंट भी होगा, वो इंडिपेंडेंट भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर आपके 4 रोज क्या है? 4 रोज थे ना? 4 रोज मतलब 4 वेक्टर। ये क्या है? ये सेट क्या दिया उन्होंने? ये सेट क्या दिया? डिपेंडेंट दिया है ना? डिपेंडेंट दिया। ये डिपेंडेंट दिया है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो रैंक कभी 4 आएगी क्या आपकी? नो सर। नो। तो आपको बस क्या इंफॉर्मेशन है? इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4। इतना आपको समझ में आ रहा है यहां से? क्लियर? यस सर, क्लियर। सो इफ इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 मींस लेस इक्वल 3, है ना? लेस देन 4 मतलब कौन से वैल्यूज है? 3 2 एंड 1 ना, सो लेस इक्वल 3। एनी डाउट? सर तो फिर इस 4 रो में से एक रो कंपलसरी 0 होगी ही ना, मतलब एक्लॉन फॉर्म एक रो होगी कंपलसरी होगी। हाँ, एक रो कंपलसरी होगी। करेक्ट। एक रो कंपलसरी होगी, बट वी डोंट नो अबाउट 2 रोज 3 रोज एंड 4 रोज। ठीक है? एक 4th रो आपकी कंपलसरी 0 होगी। सर हाँ सर, जर मग याचे ऑप्शन काय सांगितलं तुम्ही? रँक इज लेस देन और इक्वल टू 3, हा करेक्ट ऑप्शन आहे का? लेस इक्वल 3। हाँ, कारण आपल्याला फक्त एवढं ओके, फ्रॉम दिस वी जस्ट नो दैट रैंक इज नेवर 4। इतना ही समझ में आ रहा है आपको बस यहां से, रैंक इज नेवर 4। अभी वो वैसे भी था क्योंकि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है उतना भी करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने बस कंफ्यूजन करने के लिए दिया। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4/3। सो स्क्वायर मैट्रिक्स कहां पे जनरेट होगा? 3/3। ठीक है? ओके, सो a square matrix, if A is a square matrix, then which of the following statement is true? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका करेक्ट आ रहा है? बोलो। ऑल आइगन वैल्यूज आर 0, ऑल आइगन वेक्टर्स आर 0, आइगन वैल्यूज कैन नॉट बी 0, आइगन वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। आइगन वैल्यूज पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या मैट्रिक्स में? नो। आइगन वैल्यूज मे बी 0, मे बी नॉन 0, बट कैन वी टेक आइगन वेक्टर एज 0? नो सर। क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है तो आपको हमेशा नॉन जीरो वेक्टर्स ही मिलते हैं। सो आपको पता ही ना, ये मैंने स्टार्टिंग में यही दिया था ना, x इज कॉल्ड आइगन वेक्टर प्रोवाइडेड इट इज नॉन जीरो। ओके, प्रोवाइडेड इट इज नॉन जीरो। यस, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? डी। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda I, सॉरी ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a minus lambda equal to 0, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको ही सॉल्व करके हमने वो फॉर्मूला निकाला था ना, लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करनी है, कोई भी एक ले लो ना 3/3 का, लो ये एंड कैलकुलेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैलकुलेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और क्या आएगा? लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर, फिर प्लस माइनर ऑफ फर्स्ट 1, माइनर ऑफ सेकंड 3 आएगा शायद ये। हाँ, ये सर माइनस डिटरमिनेंट इज 1
So what is this? ये क्या है basically? Option वो D, sir. lambda minus 1 whole D, sir. cube, yes sir. So which option is correct? D sir. ठीक है? ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो कंसेप्ट क्लियर रखो। आइगन बोलो हाँ। तो मुझे इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं समझा, मतलब मैं तो डी मार्क कर देती। हाँ सुनो, ये जो था ना, यहां से आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है? हाँ। और इसको सॉल्व करके अभी थोड़ा बहुत आपको पीछे जाना होगा। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके आपको फॉर्मूला मिल रहा था लैम्बडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्बडा स्क्वायर। आप ओके लेट मी शो यू, दिया है मैंने वो इन डिटेल में आपको। देखो पहले यहाँ पे देखो, ओके ओके यहाँ पे दिया ना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ नीचे देखो, पहले मैंने क्या किया, इस वजह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट किया था, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। तो मेरा इक्वेशन, मेरे रूट्स क्या आ रहे थे 1 2, फिर मैंने इसको और सिंप्लीफाई किया था एंड आई हैव क्रिएटेड वन डायरेक्ट इक्वेशन। तो इसको ही मैंने सिंप्लीफाई करके इसमें लिखा है। क्लियर ना? यस सर। ये इसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, क्योंकि इस प्रोसेस से जाना आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ये लेंदी होगा ना, ए रखो लैम्बडा रखो फिर इसको सॉल्व करो, डिटरमिनेंट लेके फिर लैम्बडा की वैल्यू समझ में आ रही थी। तो इसको ही मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था, लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इनटू लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। डन। ओके, सो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एंड ये क्या है, ये जो आप बोल रहे थे ना, दैट इज जस्ट द इक्वेशन बाय व्हिच यू विल गेट द आइगन वेक्टर। हाँ यस सर। Okay. Eigen values of symmetric matrix are always real. Okay. So अभी के लिए इसको साइड में रखो, मैं बोल दूंगा बाद में आपको। हाँ। Next, I will take this part in tutorial, लेने वाला था। तो there are few questions where उसके लिए थोड़ी बहुत मुझे theory explain करनी होगी out of the syllabus. Yeah. Next, the determinant of which matrix is the product of diagonal elements? All diagonal के लिए भी होता है, upper के लिए भी होता है, lower के लिए भी होता है। So all. Eigen values of A are equal to what? Option C equal to A transpose. Eigen values of A Equal transpose. to A transpose. अभी इसमें भी ये confusion है, but we need to remove this option. ठीक है? Next, the inverse of matrix A is exist if and only if eigen values क्या चाहिए? नहीं नॉन जीरो। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 आती है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा वहां पे। सो इनवर्स एग्जिस्ट प्रोवाइडेड ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो। लेट ए बी n by n मैट्रिक्स, देन नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। क्वेश्चन क्या है कि n by n ऑर्डर के मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर्स का काउंट क्या आता है, वेदर इट इज ऑलवेज इक्वल टू n, so it is less equal n. In some cases it is n, in some cases it is n minus 1, like that. So it is always less than or equal to n. Clear? आइगन वेक्टर्स आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स में कुछ जगह पे आपको 3 आइगन वेक्टर्स मिल रहे थे, कुछ जगह पे आपको 2 ही मिल रहे थे, कुछ जगह पे आपको 1 ही मिल रहा था। So it is always less equal that order. ये शायद मैंने लिया था, एक रिमार्क आपको मैंने बोला था, इस पे एक क्वेश्चन होगा। सर 36 नहीं समझा सर। All eigen values are not Okay. zero. Inverse exist, in which case inverse exist? सर जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सर। डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट? Yes, sir. अभी Yes, मुझे sir. पहले ये बोलो, डिटरमिनेंट में और आइगन वैल्यूज में क्या रिलेशन है? प्रोडक्ट यस सर। ठीक है? हाँ यस सर। तो अगर इसमें से एक भी 0 आती तो डिटरमिनेंट 0 होगा, तो इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। सो ऑल आइगन Yes, वैल्यूज sir, आर समझ नॉन जीरो। या नेक्स्ट, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आर। मैंने आपको बस बोला था इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन है। हाँ, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल आते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, इस पे कुछ ज्यादा थियरी नहीं है आपको। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल आते हैं। नेक्स्ट, मैं लेने वाला कुछ पार्ट ट्यूटोरियल में। लैम्डा be the eigenvalue of matrix A, then eigenvalue of adjoint of matrix. Okay, I will take this part is also in tutorial. It is always determinant of A upon lambda. Okay, the proof is also trivial. Okay, adjoint matrix, अगर आपके पास
ए की आइगन वैल्यू है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आती है डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन दिस केस? 1 upon lambda. 1 upon lambda. What is the eigen value of a raised to 4? lambda 4. Lambda 4. What is the eigen value of a minus 2i? Lambda minus 2. है ना, याद रखो ये रिजल्ट. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the eigenvalues of orthogonal matrix. Then which of the following is not correct? Is not correct. ये करेक्ट है क्या पहला स्टेटमेंट? डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज. ये सो पहला तो करेक्ट है. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1. करेक्ट. ये करेक्ट है. सेकंड करेक्ट है क्या? यस सर. सर कुछ भी आ सकता है ना. ओके, ऑर्थोगोनल का दिया सर, ऑर्थोगोनल का ही दिया, मैंने देखा नहीं. हां यस सर. तो ये करेक्ट है. ये भी करेक्ट है ना. 1 upon ऑर्थोगोनल नहीं सॉरी सर -1 आता है सर. हाँ यस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा प्लस और माइनस 1 में ही आता है. यस. तो ये भी करेक्ट है. ये क्या बोला उन्होंने? आइगन वैल्यूज ऑफ ए. आइगन वेक्टर्स ये वैल्यूज. आइगन वैल्यूज ऑफ नहीं सर ये ट्रांसपोज होगा एक. नहीं सर ये सी वाला रॉन्ग है सर. नहीं ये भी रॉन्ग ही है ना. दिस आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, है ना. यस. ठीक है. और अभी ये भी रॉन्ग है सर. उस हिसाब सर से सी का ए इनवर्स होगा. सर उस हिसाब से सर सी में भी वहां पे ए इनवर्स लिख सकते थे सर. वो नहीं अभी वो ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में शायद एक रिजल्ट मैंने लिया है कि मुझे याद नहीं है. इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू 1 upon लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ये रिजल्ट लिया है शायद मैंने. यू कैन चेक. यस सर. अभी चेक करते. आपके पास ए की आइगन वैल्यू है x इक्वल टू लैम्डा x. ठीक है. ये गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है. ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है? a इनटू ऑर्थोगोनल मींस व्हाट? मतलब a इनटू a इनवर्स इज i ना. ट्रांसपोज इज ऑलवेज इनवर्स. ट्रांसपोज इज ऑलवेज इनवर्स. बट ठीक है, लेट इट बी. ठीक है. सो इफ आई मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज विल गेट a ट्रांसपोज इनटू a इनटू x. नहीं ना, फिर वो ट्रांसपोज का जाएगा. a इनवर्स का ही, उससे कोई फायदा होगा नहीं. सर ट्रांसपोज में ये मतलब ये आइगन वैल्यूज चेंज थोड़ी होंगे सर. तो ये ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये सर सी वाला करेक्ट है ना सर. करेक्ट है कि ऐसा रिमार्क मैंने लिया. ओके, लेट मी गिव यू द प्रूफ क्विकली. सो मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज यू विल गेट दिस, बट a ट्रांसपोज इनटू x, a इज आइडेंटिटी. सो x इज इक्वल टू लैम्डा a ट्रांसपोज इनटू x. लैम्डा को इस साइड में शिफ्ट करो. सो कैन आई राइट लाइक दिस? सर पर हमें रिजल्ट सर पता ही है ना सर कि a ट्रांसपोज इक्वल टू a इनवर्स होता है. तो उस हिसाब से आने वाला करेक्ट है. a ट्रांसपोज और a इनवर्स सेम होता है. लैम्डा ऑलरेडी सी करेक्ट. हाँ. सो लैम्डा क्या है? a की आइगन वैल्यू है, तो लैम्डा ट्रांसपोज की भी होगी. करेक्ट ना? यस सर. दिस इज वन वे टू प्रूव. सेकंड वे जो अभी आपने ही बोला था, उसका रीजन ये था कि लैम्डा a की आइगन वैल्यू है. a and a ट्रांसपोज and a इनवर्स इक्वल है, बट वी नो दैट ट्रांसपोज और a के आइगन वैल्यूज इक्वल आते हैं, तो लैम्डा a की भी आइगन वैल्यू आ जाएगी. बट ये और इनवर्स के आइगन वैल्यू सेम आते हैं, तो 1 by लैम्डा भी आइगन वैल्यू आएगी. ठीक है. सो इफ लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, 1 by लैम्डा इज आल्सो आइगन वैल्यू. ठीक है. एंड दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 and minus 1. सॉरी 1 and minus 1. Therefore, D is the wrong one. ठीक है. सो इसलिए यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज आते हैं वो 1 and minus 1. तभी ये अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका लैम्डा और 1 by लैम्डा सेम आता है? 1 सर. प्लस और माइनस 1. प्लस और माइनस 1. ठीक है. सो दिस इज द केस. ठीक है. इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है. एट द एंड दिस इज द प्रूफ. लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ a, but a and a transpose are equal. Lambda is also eigen value of a transpose, but a transpose is a inverse, therefore 1 by lambda is also eigen value. So in general 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, 1 by lambda 3 are also the eigen values of a. So ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं रैंक के. मुझे बोलो कैसे सॉल्व करोगे आप? सर
वो कर सकते हैं सर। ओके, इक्विवेलेंट फॉर्म में बस दो ऑपरेशन Yes. करने, यू विल गेट द आंसर. सो कैन यू टेल मी? Yes, sir. R2 is equal to R2 minus 3R1. बोलो बोलो, आप मुझे बोलो फाइनल आंसर क्या है? ओके तो फाइनल आंसर था सर, आप हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या है सर, मतलब हाँ, इसके रैंक बोलो. डू इट बाय एनी वे, बट जस्ट टेल मी योर रैंक. So there is no change in first row. R2 minus 3 times this, so 0. 0 Then 4 minus 6 minus 2 minus 2. It is 3 something. इधर addition plus की 3 जरूरत नहीं है. 3 है, yes, दोनों के addition ये minus 1 minus 1 रैंक minus 2 आ गई, थर्ड रो मैच कर रही है. 10, yes, आप चेक करो. सेकंड रो लास्ट एलिमेंट minus 10 है सर. हाँ, yes 2 2. ठीक है, दिस इज वन वे. अदर वे से करना है तो आप अगर 3x3 का एक मैट्रिक्स कोई भी ले लो, उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो. वो अगर 0 आता है तो रैंक ऑलवेज लेस देन 3 होगी, है ना? दैट इज आल्सो वन वे. करेक्ट ना? ये लिया था मैंने कुछ बैच में, शायद ऑफलाइन में. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है. Clear. बट आप इक्विवेलेंट फॉर्म से ही करो, दैट विल बी द इजीएस्ट वे. डू इट बाय इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम जाता है स्टोर करने में. यस, व्हाट अबाउट दिस? जस्ट टेल मी रैंक. सर आई थिंक ऑप्शन सी सर. ऑप्शन सी. अब ये बोल्ड ही हुआ है तो उस पे मत जाओ. नेक्स्ट. सर मुझसे रैंक 2 सकते हो यहाँ पे नहीं, दोनों का डिफरेंस करते हो ना, क्या आता है दोनों का डिफरेंस? थर्ड रो में इन दोनों का डिफरेंस करो, क्या आता है? 1 and One. then my 1. तो ये हाँ, दोनों तो इसको- इक्वल हो जाएंगे ना. yes sir, yes, रैंक 2/2 का तो मुझे नॉन जीरो दिखाई दे रहा है डिटरमिनेंट. -3 और -4 -2 तो 2 ही रहेगी. सो इट डिपेंड ऑन यू, आप कितने स्मार्टली उसको सॉल्व करते हो. ठीक है, या जिनको डिफिकल्टी आती है, गो बाय रेगुलर वे, बट इट टेक सम टाइम. ओके, yes sir, मैं बस क्या कर रहा हूँ, दो रो इक्वल करने की कोशिश कर रहा था. ओके, 2 रो इक्वल है तो मुझे क्लियरली पता है कि 3 तो रैंक नहीं आएगी. देखो मैं किस थॉट से जा रहा हूँ, 3 तो रैंक कभी नहीं आएगी. अभी 2 है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैं कोई भी 2/2 का डिटरमिनेंट ले सकता हूँ ना. yes sir, ओके, Yes. सो यू कैन. लास्ट में -1 आएगा ना? कहाँ पे? सर पर आप ये कैसे हाँ, show sorry, कि sorry. 3 कभी नहीं आएगा सर. नहीं इक्वल नहीं आ रहा है. सो यहाँ पे 3 है आंसर. सर एक डाउट था सर, बोलो। आप ये कैसे श्योर थे सर कि 3 कभी नहीं आएगा सर? if this see at the end, अभी ट्रिक में क्या यूज कर रहा था, अगर 2 रो इक्वल आते हैं कोई भी बाय सम एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, yes 2 रो अगर इक्वल आते हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा ना. yes हाँ, 3/3 Yeah. से 0 हाँ, है तो रैंक लेस देन 3 होगी. yes sir, तो मैं 2/2 का तो मैं इजीली चेक कर सकता हूँ ना यहाँ पे. yes sir, हाँ ये एक वे बोल रहा था. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेता हूँ, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे भी 1 आता है, बट यहाँ पे -1 आ रहा है. -1 आ रहा है. ठीक है, तो ये दोनों रो इक्वल है ही नहीं, और ये तो डिफरेंट ही रो थी. अब ये देयर आर मेनी वेज, तो ये मुझे पता है ये तीनों रो से इंडिपेंडेंट है. दिस इज माय कंक्लूजन. तो मेरा आंसर 3 आ रहा है. आप चाहो तो इसको इजीएस्ट वे में कर सकते हो, इसको मैट्रिक्स में स्टोर करो, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, वो नॉन जीरो ही आएगा. yes sir, या यू कैन गो विद बाय योर रेगुलर प्रोसेस इक्विवेलेंट फॉर्म. ठीक है, बट क्रॉस वेरीफाई करते जाओ. 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला सर है. नेक्स्ट का रैंक 2 है. रैंक 2 है ना. ओके, कैसे किया ये? फोर का नाम सर Addition R1 and R2 R1 plus R2 R1 plus R3 R4 आ रहे थे. ओके, ठीक है. सो रैंक 2 रिलेशन जितने रोज में मिलता है उतने रोज रिड्यूस होते जाएंगे. ओके, कुछ स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है, पर कुछ स्टूडेंट को थोड़ा टाइम जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट. इसको डायरेक्टली कैल्सी में रखना है. ठीक है, ऐसे सिस्टम को कैल्सी में रखना है. अगर सॉल्यूशन मिलता है तो यूनिक होगा. ओके, आपको EX में इनफाइनाइट भी समझ में आता है, नो सॉल्यूशन भी समझ में आता है. सो नो प्रॉब्लम विद दिस. इसको पता है आपको क्या करना होगा. वो मैट्रिक्स लिख के देखना होगा कि लैम्डा और म्यू पे क्या कंडीशन आएगी, सो दैट दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. करेक्ट ना? ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हमने. सर आया सर एग्जाम हो गया. हाँ,
ये भी पूछा था आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स। सर ये ऑप्शन का था। ज़्यादा मुझे सेकंड यूनिट के ही देखने थे। ये भी कैल्स में पुट करके सॉल्व करो। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। आइगन वैल्यूज इसके गिवन है। देन फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज। मुझे बोला आप कैसे करोगे? आप फाइंड करोगे या आपके पास और कोई ट्रिक है? फाइंड करना तो है ही आपके पास। व्हाट इज द अदर ट्रिक? सर ते आपण अप्लाय करू शकतो A = वेरी गुड, ये ट्रिक यूज करनी है यहाँ पे। डोंट गो टू फाइंड दैट आइगन वेक्टर। ओके, तो ए मैट्रिक्स आपके पास है, लैम्डा आपका क्या है? 1 है। सो जस्ट Yes, sir. फाइंड अ वेक्टर व्हिच गिव्स x इक्वल टू x। तर फर्स्ट एलिमेंट चेक करायचं सर। फर्स्ट एलिमेंट अब ये चारों रो के लिए करना होगा, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करना होगा। एक तो चारों रो के लिए करो या तो सॉल्व करो, ठीक है। अभी इतना तो पता हो रहा है ना कि ax का प्रोडक्ट x ही आना चाहिए। तो पहले इंटरव्यू आप चेक करते हो ना, तो भी समझ में आएगा। तो 1 1 1 से करते हैं, चलो। क्या आएगा 1 1 से? 2 -2 0 3। ये करेक्ट है क्या? फिर 3 आता तो 3 बार आएगा ना, 3 बार Sir, तो option आएगा, सो इट इज नॉट करेक्ट। मैं लिखा था फिर से 1 1 1 के लिए पहली एंट्री क्या आती है? 3 आती है। आपको मैंने क्या बोला था? x इक्वल टू x आना चाहिए, बट x क्या होता है? x ऑप्शन बी आएगा। हाँ, तो ये करेक्ट है ही नहीं। सो हाँ, बी चेक करते फिर हैं। ऑप्शन बी आएगा बी। 1 -1 -1, ठीक है। सो 2 4 -3 1, ये मैच कर रहा है। 1 के साथ 1 मैच कर रहा है, -1 के साथ -1 आना चाहिए। सो 1 -1 0 -1 आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सर ऑप्शन बी सर ये। ठीक है। तो मैं बस ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं। आप बस चेक करो कि कौन से x के लिए यू विल गेट x इक्वल टू लैम्डा x। जस्ट फाइंड अ x फॉर विच यू विल गेट x इक्वल टू x। थोड़ा टाइम जाएगा बट आ जाएगा। कैलकुलेशन से तो फास्ट हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स? अरे इतना टाइम लगाना है क्या? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आइगन वैल्यूज एंड ट्रेस? ट्रेस इज इक्वल टू B. एडिशन ऑफ सो 10 - 2 इज 8। तो ऐसे कौन से आइगन वैल्यूज जहां पे सम 8 आती है? तो ये कभी होगा क्या करेक्ट? पॉसिबल ही नहीं है। जी सर, बी। हाँ, अब ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। 8 आना चाहिए, तो आई डोंट नो अबाउट दिस। तो इन दोनों में से अभी प्रॉब्लम है। उसके आगे क्या करोगे फिर? डिटरमिनेशन। हाँ, तो आपको भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है कैल्सी से। कैलकुलेट इज डिटरमिनेंट। कैल्सी से मैनुअली आप कैसे भी करो, जस्ट टेल मी डिटरमिनेंट। -52 माइनस -52 -48 सर। माइनस -40 सर। हाँ -48 यस सर। कितना आ रहा है फाइनली? मुझे बोलो। -48 सर। -48। -48 है। Okay, so which option is correct then? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में इमीडिएटली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे, अगर कुछ रह भी जाता तो डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैले का क्वेश्चन है, देखो। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज दिस, देन बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम ए इनवर्स इज। सो बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम यू विल गेट a स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स a माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो a इनवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? सर ए इनवर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे सर। मल्टीप्लाई और करेंगे फिर तो a माइनस तो 9 a माइनस 9 माइनस ए इनवर्स इक्वल टू Option जीरो। इनवर्स शिफ्ट कर देंगे तो ये फिर ऑप्शन ये है। ऑप्शन ही आएगा, ओके। आइगन वैल्यूज बोलो, पहले तो सम से चेक करो। पास फाइव सारे वैसे ही है ना उनके। हाँ, यस। तो डिटरमिनेंट से जाना पड़ेगा। तो ये सर तो ए या फिर सी रहेगा ऑप्शन। हाँ, ए या फिर सी एंड डिटरमिनेंट वी कैन कैलकुलेट। यस। एक मिनट, ठीक
है, और कोई ट्रिक नहीं है इसमें फिर अभी. यू नीड टू कैलकुलेट डिटरमिनेंट. ठीक है. Yes. Next, the characteristic equation of this. अरे ब्लैंक क्यों आ रहा है? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस थे. तो आप क्या करोगे? पहले ट्रेस देखो. ट्रेस क्या है? ट्रेस क्या है? 0. तो क्या आएगा फिर यहाँ पे? लैम्बडा क्यूब माइनस सब में 0 है. अरे कोई फायदा मतलब उसका कुछ यूज होगा ही नहीं. तो यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट करना होगा. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ट्रिक, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डिटरमिनेंट भी 2 ऑप्शन डाले, +1 के भी 2 डाले और -1 के भी 2 डाले. तो अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट भी करते तो 2 ऑप्शन डिलीट हो जाएंगे. करेक्ट ना? तो इट मींस आपको ये मिडल का एलिमेंट कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. ठीक है, सारे एलिमेंट कैलकुलेट करना. हाँ. सो देयर इज नो ट्रिक, जाना ही पड़ेगा प्रॉपर वे से. हाँ. व्हाट अबाउट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 14. द गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स of order 2 by 2 is given using Cayley-Hamilton theorem. tell me the simplified form of this. तो कैले से आपको ये रिजल्ट मिलता है a³ - 3a + 2i = 0, और आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो कैन आई राइट दिस वैल्यू एज a³ A square है ना? हाँ सॉरी a². So can I write this given expression as this a in bracket a² - 3a + 5 - 5 times i. लिख सकता हूँ क्या ऐसे में? नहीं. क्या प्रॉब्लम हो रही है? 5 times i. ठीक है, तो इससे पहले मुझे क्या करना होगा? 5i मैच नहीं कर रहा है, तो 5a को मैं कैसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं ना सर. मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बचा हुआ उसको साइड में भेज देंगे. चलेगा. तो भी चलेगा. तो 5a को आप स्प्लिट करो 2a + 3a, बाकी चीजें एज इट इज. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे 2 के साथ मैच करना है. ठीक है, तो a³ - 3a², 5a को मैं स्प्लिट कर रहा हूं 2a + 3a - 5y. नाउ लेट मी टेक a कॉमन फ्रॉम दिस. सो इफ आई टेक a कॉमन आई विल गेट हियर a² - 3a + 2 times i, एंड नेक्स्ट पार्ट इज 3a - 5y. अभी ये वैल्यू क्या आएगी? a² - 3a + 2i 0 बाय कैले. सो व्हाट इज योर आंसर? ए सर. 3a - 5y. ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में. बस उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो. इस इक्वेशन में ये इक्वेशन एडजस्ट करने की कोशिश करो, फिट करने की कोशिश करो. आ रहे समझ में ये क्वेश्चन? यस सर. ओके. कितना टाइम है और? 1 मिनट. 5 मिनट्स. ओके ठीक है. Yes, next. Okay, so I will continue only for 5 minutes and then we'll stop. बोलो. The linear transformation is. अभी ऑर्थोगोनल तभी होगा जब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा. ये सिंगुलर तभी होगा जब इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा. अभी अब आपको पता ही नहीं तो ऐसे ऑप्शन कभी नहीं आएंगे. ठीक है, so just check this. सिंगुलर है क्या? ये नहीं है ना? डिटरमिनेंट नॉन 0 आ रहा है तो यही होगा. ये लिया था शायद मैंने एग्जाम में, दिया था ना ऐसा कुछ? इसका प्लस माइनस क्या आ रहा था इसका आंसर? प्लस माइनस 12. +-12. Okay. A is a matrix of order 6 by 5 in echelon form with 2 0 rows. Then what is the rank? Then correct. What is the rank? 4. There are 6 rows. 4. 1 2 3 4 5 6. उसमें से लास्ट में 2 rows 0 है, so rank must be 4. If for non-homogeneous system Ax equal to x, rank of A and rank of augmented matrix are equal, then system is consistent. इसको कैसे सॉल्व करोगे? 19 को these vectors are just write down the determinant. Linearly dependent. सर नीचे है सर 1. क्या होगा? सर 1 - 1 नीचे है. That you can arrange either in column or either in row. That will not matter. क्योंकि ट्रांसपोजन A का डिटरमिनेंट सेम आता है ना.
Correct? Yes, na? sir. Yes. So you can write this vector either in column also or either in row also because the determinant of transpose and that matrix both are equal. तो कैसे भी लिखो, that doesn't matter. ठीक है? तो इसका determinant कैलकुलेट करो, वो जीरो आता है तो डिपेंडेंट, नॉन जीरो आता है तो इंडिपेंडेंट. Like that. Suppose A is a matrix of order 4 by 5. Its rows are linearly independent. Then the rank is 4 rows independent है, तो वही rank आएगी. Degree of characteristic equation of matrix is equal to order of the matrix ना. ऑर्डर ऑफ द Yes, sir. लैम्बडा क्यूब तभी आता है जब मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 by 3 आती है. Yes, sir. A square matrix A is orthogonal if A is A transpose and this is identity. Yes, trivial है. Product of eigen values of matrix are always equal to determinant ना. Sorry, A option. yes. Rank of identity matrix. I5 के रैंक क्या है? Five. क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 आता है, सो इट इज नेवर 0. सॉरी, है ना, इट इज नेवर 0, देयरफॉर इट्स रैंक इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ऑर्डर, है ना. सो 5 ये प्लस और माइनस 2 है. आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स. 2 1 9. 2 1 minus 2 सेकंड, 3 4 1. ओके, 1 2 4 द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ दिस, ये तो कैलकुलेट करना होगा, है ना. देयर इज नो अदर वे. आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 1 2 3. इनवर्स के क्या आएंगे, बोलो जल्दी. C option. 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3. नेक्स्ट, अब ये सॉल्व करना होगा, है ना. इसके रैंक 2 है तो के की वैल्यू कैलकुलेट करो. रैंक 2 है मतलब ये रो क्या होगी, Yes, sir. Infinite, तो sir. ये जीरो करने के लिए के के Zero, ऊपर zero होगा, sir. हाँ, के के ऊपर कंडीशन आएगी. कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट वैल्यू? नहीं करना होगा क्योंकि सेकंड रो पे डिपेंड है, सेकंड रो पे डिपेंड है. ठीक है, ये ए के आइगन वैल्यूज है तो ए ट्रांसपोज के क्या आएंगे, 1 2 3. सेम आएंगे 1 2 3. रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स करना होगा, ये भी करना होगा. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर विच वैल्यू आपके. हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको यू कैनॉट यूज डिटरमिनेंट ट्रिक, बट दे आर. एक रिजल्ट है, क्या होता है, सी 2 by 2 में अभी समझ में आएगा कि नहीं. रिजल्ट क्या होता है कि 2 by 2 में R2 पता है ना आपको, R2 इसमें मैक्सिमम 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर आ सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट R2 मतलब ऐसे वेक्टर, तो इसमें मैक्सिमम 2 इंडिपेंडेंट आ सकते हैं. इसमें अगर आप एक और वेक्टर ऐड करते हो ना, दैट बिकम डिपेंडेंट. बट ये रिजल्ट आपको नहीं समझ में आएगा तो छोड़ो, इट्स बेटर टू सॉल्व दिस. तो यहाँ पे 4 by 4 में मैक्सिमम 4, तो वो रिजल्ट भी यहाँ पे यूज होगा नहीं. वैसे यू नीड टू सॉल्व और यू कैन ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस. क्या है इसका आंसर, इनमें रिलेशन कैलकुलेट करो या सॉल्व करो. डिपेंडेंट है ना. व्हाट इज द रिलेशन? Price of R plus R is equal to R. यस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो और इसको ऐड करते हो तो यही मिलता है ना. Yes. ठीक है, या तो इसको डायरेक्टली डिटरमिनेंट में लिखो ऐसे और इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो भी समझ में आ जाएगा. इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिस्टम को यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो इंडिपेंडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है तो डिपेंडेंट. ठीक है, तो ये वैसा इक्वेशन है. आई थिंक हियर वी कैन स्टॉप नाउ. ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपकी प्रैक्टिस हो गई इस यूनिट की. स्पेक्ट्रम मतलब आइगन वैल्यूज. आई विल शेयर दिस पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस. ओके, डन. क्या क्या, सॉरी. अरे हाँ, मैं कर देता हूँ अभी, आज कर देता हूँ. ओके, आई ऑलरेडी फिल योर अटेंडेंस. आई विल शेयर दैट. आई विल शेयर ऑल्सो, आई विल शेयर थ्योरी क्वेश्चन बैंक. हाँ, बोलो. परवा से तो मैं